खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हुकूमत अवाम को तसल्ली दे रही है, लेकिन खुद वजीर आजम हैं घबराहट के शिकार। मगरबी एशिया बहरान पर राहुल गांधी का बयान। मुल्क में ईंधन की कमी नहीं, सप्लाई चेन है मुस्तहकम। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में दी जानकारी। SIR बेज़ाब्तगियों पर CAC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुआखजे की तैयारी। 193 अपोजिशन MPs ने नोटिस पर किया दस्तखत। ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खामनेई का पहला पैगाम जारी। आबनाए हरमुज को बंद रखने और हर ईरानी के खून का बदला लेने का किया ऐलान। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी, तेल की कीमत भी बहुत जल्द आएगी कमी। अमेरिकी सदर ट्रंप खत्म। लोकसभा में जुमेरात को मुल्क में सिलेंडर बहरान के मसले पर अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया। हुकूमत को निशाना भी बनाया। ऐवान के अंदर और बाहर अपोजिशन रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए मुतालबा किया हुकूमत इस मामले पर वाज़ेह जवाब दे। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म पर तंज किया और कहा हुकूमत अवाम को तसल्ली दे रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि खुद वज़ीर आज़म घबराए हुए हैं। It's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This is this war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming. और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, राइट? तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेरिकी दबाव पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह फैसला करने की इजाजत देना कि हिंदुस्तान किससे गैस और तेल खरीदता है हैरान कुन है। The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने मगरबी एशिया जंग की वजह से पैदाशुदा तेल व गैस बहरान पर पार्लियामेंट में बयान दिया। उन्होंने कहा सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत का दरकार ज़रूरत इक़दामात हुकूमत कर रही है। मोदी
India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged from pre-crisis norms. Hospitals and educational institutions have been placed on uninterrupted priority supply. And their access to LPG is fully assured regardless of broader demand conditions. Field reports indicate hoarding and panic booking at the distributor and retail level, driven by consumer anxiety rather than any actual supply shortage. The House should be clear on this. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production. वजारत पेट्रोलियम के ज्वाइंट सेक्रेटरी शुजाता शर्मा ने रसोई गैस के बहरान पर कहा, हुकूमत तमाम मुमकिन ज़राए से एलपीजी सिलेंडर दरामद करने की कोशिश कर रही है ताकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई बरकरार रहे। हुकूमत ने सार्फिन से कहा वो घबराहट का शिकार न हो। Now let me come to the supply of LPG. I mean, you know that we import almost 60% of our LPG, and most of it, almost 90%, comes from Strait of Hormuz. So it's a difficult situation, but government is making all efforts to ensure that the supply to the domestic consumers is ensured. As I already said, that the refining LPG production in the refinery has enhanced. We have almost 25,000 distributors throughout the country, and we deliver almost 50 lakh cylinders on daily basis. On the distribution side also, no dry out has been reported, but there is a manifold increase in the booking because of the panic. We urge the citizens to avoid panic booking, and all efforts have to be made to conserve the fuel wherever possible during this period of global uncertainty. Regarding non-domestic LPG or the commercial, अपोजिशन पार्टीज की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को ओहदे से हटाने की तैयारी जारी है। जराये के मुताबिक 130 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट और 63 राज्यसभा मेंबरान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की बरतरफी के नोटिस पर दस्तखत किए हैं। इस दौरान एक अपोजिशन लीडर ने कहा, अरकान पार्लियामेंट ने नोटिस पर दस्तखत करने में बहुत जोश व खरोश का मुजाहरा भी किया और मुतअद्दिद कानून साज जुमेरात को भी नोटिस पर दस्तखत करने के लिए आ गया है। हालांकि मतलूबा तादाद पहले ही हासिल कर ली गई थी। यह पहला मौका है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का नोटिस दिया गया है। एलपीजी बहरान पर कांग्रेस एमपी तारिक अनवर ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने हुकूमत के दावों को खारिज करते हुए कहा कि लोग घर में खाना पकाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, पुरी साहब ने जो बात कही उस पर किसी को यकीन नहीं होगा, किसी को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि लोग रोज फेस कर रहे हैं। जो जमीनी सच्चाई ये है कि आज बहुत सारे घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चों को वक्त पर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अपने पीठ थपथपाने से कम बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आज जो है एलओपी ने जो बात उठाने की कोशिश की वो यही कि पब्लिक कंसर्न का मामला है। पब्लिक के जो कष्ट झेल रही है, हिंदुस्तान की महिलाएं जो कष्ट झेल रही है, उसी बात को रख। एलपीजी बहरान का असर मुल्क के कई शहरों में महसूस किया जा रहा है। अगरचे हुकाम का दावा है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई शहरों में लोग अपने सिलेंडरों को रिफिल करवाने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होते नजर आ रहे हैं। भोपाल के एक इलाके के रिहायशियों ने बताया कि वो गुज़िश्ता 2-3 दिनों से शहर के एलपीजी डीलर्स के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। हाँ, पहले तो ऐसा होता था कि आप आते हो, लाइन में लगते तो भी आपको मिल जाता था, बट अब ऐसे कि आप 1-2 दिन में आ रहे, 3 दिन में आ रहे तो भी आपको नहीं मिल रहा। हमने कल बुक किया था, बुक तो परसों किया था, कह रहे थे कल के, आज गाड़ी नहीं आई, मतलब गाड़ी आएगी, फिर आज आए तो अभी कह रहे हैं कि खत्म हो गया, लाइन में मत लगाओ, अब कल आओ, सुबह आओ 8 बजे सुबह। मसला यही है कि हम लोग रोजे में भी धूप में भी परेशान हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि खाना बनाने के लिए गैस मिल जाए।
और एक दिन आज नहीं मिलेगी तो हम कल फिर आकर सुबह से लगेंगे। परेशान तो जनता को होना ही है और जनता का काम ही है परेशान करवाना। यहाँ तो कह रहे मिलेगा, कह रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ियाँ भी जा रही हैं डिलीवरी के लिए, यह हो जाए। बस इतना नहीं बता पा रहे कि किल्लत है या नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोग परेशान क्योंकि फोन नहीं उठा रहे ना ये लोग। बुकिंग ले करो वो करो तो सिर्फ फोन नहीं उठा रहे, ये प्रॉब्लम हो रही है। दिक्कत तो गैस की सबसे बड़ी, खाना बनाने की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल घरों में। सुबह ही लाइन में लग जाओ, 10 बजे के लगे हुए हैं, अभी लगता नहीं कि 2 घंटे भी नंबर आई, और होगी भी या नहीं बुक होगी ये भी संभावना नहीं। अभी तो ये है कि पता नहीं होगी नहीं होगी, देंगे नहीं देंगे। पहले क्या होता था कि बुक फोन पे हो जाती है, आजकल फोन पे नहीं हो रही है। 3 दिन से हम लगे हुए फोन पे बुक करने के लिए, हो ही नहीं रही। अब कल से यही आ रहे हैं, कल नहीं हो पाई, आज फिर लगे हुए लाइन में, देखो किस टाइम नंबर आएगा नहीं आएगा। LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दिल्ली में कांग्रेस वर्करों ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। नागपुर, कोलकाता, लखनऊ में भी लोग सड़कों पर निकल आए और मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, इनफ क्वांटिटी में सिलेंडर उपलब्ध है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है नागपुर की जनता से कि पैनिक करने की कोई भी जरूरत इसमें नहीं है। और अभी वहाँ पे कंडीशन भी रिलैक्स हो रही है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेस आई, स्टेट गवर्नमेंट में ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल गार्डन मिनिस्टर भी बात कर रहे कि कसलस त्याच्यामध्ये विषय नहीं है। नहीं, कोई भी शॉर्टेज नहीं है। अगर शॉर्टेज होता भी है, अभी तो बिल्कुल नहीं है। वो पैनिक कंडीशन में लोग अपने होर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा ना करे। इन एडिक्वेट क्वांटिटी में सिलेंडर डोमेस्टिक रहो या कमर्शियल रहो उपलब्ध है। ये सरकार बहुत झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये सरकार जनता को बता नहीं रही। देखिए, सरकार को अमेरिका डरना बंद करना चाहिए, अडानी की गुलामी करना बंद करना चाहिए। ये जनता की आवाज उठाने कांग्रेस पार्टी के सिपाही खड़े। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में बढ़ते जुराइम और पार्टी रहनुमाओं पर हमलों को लेकर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दारुल हुकूमत में गैंगवॉर, खवातीन और बच्चियों के अगवा और सरेआम कत्ल जैसे वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। और उसका सीधा उदाहरण यह है कि हमारी पार्षद बैठी हैं ज्योति जी, इनके क्षेत्र में कल काम हो रहा था सड़क का, इनके क्षेत्र में काम हो रहा था। ज्योति गौतम जी हैं, पार्षद हैं, उनके साथ संजय जी हैं, ये राजेंद्र नगर विधानसभा के हमारे ग्रीवेंस की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, पार्टी के, आम आदमी पार्टी के। ये लोग काम देखने गए, इलाके की पार्षद हैं, उनके इलाके में कोई काम हो रहा है वो देखने जा सकती हैं, कैसा काम हो रहा है वो भी देखने जा सकती हैं। स्थानीय जो वहां का विधायक है उमंग बजाज, वो अपने सामने अपने गुंडों से संजय जी को पिटवाता है और ज्योति गौतम जो हमारी पार्षद है उनके साथ अभद्रता करवाता है, गाली गलौज करवाता है। और इनकी हालत आप देख लीजिए, एमएलसी हुई है, इनकी एमएलसी हुई है, सारे मारपीट के प्रमाण जो है वो उसकी डॉक्टरी जांच भी हो चुकी है। इन्होंने थाने में सूचना दी, इन्होंने एप्लीकेशन दी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए, लेकिन 4 इंजन की सरकार की चौतरफा गुंडागर्दी है। आप कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो दलित समाज के लोगों के प्रति अपने दिल आत्मा हर जगह नफरत ही रखती है, ये दोनों हमारी पार्षद और हमारे साथी संजय जी ये अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जुमेरात को लोक भवन में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में तमिलनाडु के गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। आर्लेकर के लोक भवन पहुंचने पर तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ सेक्रेटरी ने तकर्रुरी खत पढ़कर सुनाया और जस्टिस ने ओहदे का हलफ भी दिलाया। जस्टिस धर्माधिकारी ने उनको हलफ दिलाया। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के 27वें गवर्नर हैं।
जम्मू में एनसी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सख्त तशवीश का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने सिक्योरिटी चूक का जिक्र किया और कहा कि मामले की जामे जांच होनी चाहिए और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फारूक साहब हमारे इतने सीनियर लीडर हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कई बार रह चुके हैं जी। इतना नज़दीक, वो भी जम्मू में, कैसे कोई आदमी उनके पहुँच पाया। मेरी फारूक साहब से बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर जो सिक्योरिटी है उसको ये देखने की ज़रूरत है कहाँ चूक हुई कि एक इतने सीनियर लीडर के इतने नज़दीक कोई मुलजिम पहुँच जाए कि उनकी जान के लिए वो ख़तरा बन जाए। मुझे लगता है इसकी बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देखिए यूपीए में हज़ारों के तादाद में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर से अभी भी साल से लोग अंडर ट्रायल इसी तरह फंसे हुए हैं जी। और शबीर शाह साहब की फैमिली, खासकर उनकी बच्ची ने जितनी तकदव की, जितनी दौड़ धूप की, तो मैं कहती हूँ कि शायद ही कोई बच्चा इतना कर सकता है। मगर अल्लाह ताला ने उनको इतना इस काबिल बनाया था कि वो अदालतों में जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। मगर उन लोगों का क्या जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना माल नहीं है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीयूष गोयल ने कहा कि पार्लियामेंट के अहाते को पिकनिक के मुकाम के तौर पर इस्तेमाल करने पर वो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। लेकिन आज हमने फिर एक बार राहुल गांधी जी की गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन देखा कैसे राहुल गांधी जी नियमों से नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते। आज महत्वपूर्ण बजट के ऊपर डिबेट चल रही थी, उसको बीच में रोककर नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया। उनको कोई चिंता नहीं है उपभोक्ताओं की, उनको कोई विषय की गंभीरता में चिंता नहीं है। मुझे लगता है ये ढोंग है जो राहुल गांधी जी प्रदर्शन करना चाहते हैं कि बड़ी उपभोक्ता की या एलपी। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों के दरमियान आबनाए हर्मुज असल मैदान जंग बना हुआ है। आबनाए हर्मुज आलमी तेल की तिजारत के लिए इंतहाई अहम समंदरी रास्ता है जिसे ईरान ने बंद कर रखा है। हर्मुज बंद होने से मशरिक़ वस्ता का तेल ग्लोबल ऑयल मार्केट नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही। बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हाल ही में अपने ईरानी मनसब से बात की। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जयशंकर ने जहाज़रानी की हिफाजत और हिंदुस्तान की तवानाई की हिफाजत पर तबादला ख्याल किया। Affairs Minister and Foreign Minister of Iran have had three conversations in the recent days. The last one discussed issues pertaining to safety of shipping and India's energy security. Beyond that, it would be premature for me to say anything. पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वज़ारत ख़ारजा ने जानकारी दी, ईरान में तकरीबन 9000 हिंदुस्तानी शहरी हैं, कहीं महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए अब तक 1,30,000 हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया गया। Indians in Iran now, we've had some 9,000 Indian nationals or thereabout who were there or who are there in Iran. These 9,000 Indian nationals comprise students. They also comprise seafarers, some business people, some professionals, and some pilgrims. Of these 9,000, you would have seen that we had issued an advisory some time back. Our mission had issued our advisory. Following those advisories, which were issued on 14th of January, if I'm not wrong, and ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खामनेई का पहला पैगाम ईरानी सरकारी टीवी पर नश्र हुआ, जिसमें उन्होंने आबनाए हर्मुज को बंद रखने के तसलसल पर जोर दिया और कहा कि मीनाब के स्कूल के बच्चों समेत हलाक होने वाले तमाम ईरानियों के खून का बदला लिया जाएगा। ये पैगाम सरकारी टीवी के एक मेज़बान ने पढ़कर सुनाया। मुश्तबा खामनेई ने ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के जारी रहने का मुतालबा किया और कहा कि दुश्मन के खिलाफ ऐसे दीगर मुहाज खोलने के बारे में मुतालबा किया गया है जहाँ इससे कम तजुर्बा है
और वो शदीद कमज़ोर साबित हो सकता है। अगर जंगी सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो मुल्क के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इन महाजों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खित्ते के ममालिक में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि जैसा कि हमने पहले खबरदार किया था, हम उन ममालिक पर हमला हमने नहीं किया, बल्कि सिर्फ वहाँ मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान और इसराइल के बीच फ़ज़ाई हमले बदस्तूर जारी हैं। इजरायली फ़ौज ने दावा किया कि गुज़श्ता दिनों के दौरान किए गए हमलों में उसने तेहरान में जौहरी हथियार बनाने वाले कंपाउंड को निशाना बनाया। इजरायली फ़ौज के दावों के मुताबिक ईरानी हुकूमत जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को जदीद बनाने के लिए तालिबान कंपाउंड का इस्तेमाल कर रही थी। उधर हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग के तकरीबन 10 दिनों के दौरान लिबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 634 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लिबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक 91 बच्चों और 47 ख़वातीन महलिकीन में शामिल हैं, जबकि 1500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। लिबनान के हुकाम के मुताबिक 8,16,000 अब तक बेघर हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान पर जारी जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने कहा ईरान में निशाना बनाने के कुछ भी अब बाकी नहीं बचा है। इस हवाले से देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच जंग के 13वें दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान शिकस्त के करीब पहुंच रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में वाशिंगटन की पोजीशन बहुत मजबूत और बेहतर है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपनी फ़ज़ाई और बहरी दोनों अफवाज से महरूम हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक तेहरान के पास अब फ़ज़ाई हमलों से दिफा का कोई मौसर निज़ाम भी मौजूद नहीं रहा। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के खिलाफ इससे कहीं ज्यादा सख्त इक़दामात भी कर सकता है। They are pretty much at the end of the line. Doesn't mean we're going to end it immediately, but they've got no navy, they've got no air force, they've got no anti-air traffic, anything. They have no systems of control. We're just riding free range over that country, and now we're going to look very strongly at the Straits. The Straits are in great shape. We've knocked out all of their boats. They have some missiles, but not very many. I think we're in very good shape. The main thing is we have to win this thing, win it quickly, but win it. And there are many people, I'm just watching some of the news, most people say it's already been won. It's just a question of when. When do we stop? We don't want to let it regrow, and ideally would like to see somebody in there that knows what they're doing. In other words, they can build a country. Now, one other thing, we can hit sections of Tehran and other places that if you do it, it'll be almost impossible for them to rebuild their country. And we don't want that. But we can hit electric, we could take apart their electric capacity within 1 hour, and it would take them 25 years to rebuild it. So ideally, we're not going to be doing that. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ पर गहरी नजर रखेगा। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बेहतरीन हालत में है। अमेरिका ने ईरान की तमाम कश्तियां तबाह कर दी हैं। ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें जल्द ही बहुत कम होंगी और इस कदर कमी का किसी को गुमान भी नहीं होगा। उधर इसराइली वज़ीर दिफा कोट्स ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग मकासद हासिल होने तक बगैर किसी वक्त की हद के जारी रहेगी। ईरान ने भी जंग जारी रखने की अपनी मुकम्मल तैयारी जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।